Hello everyone, this is Niranjan Singh and today we have to discuss about reinforced concrete structure in civil engineering. Actually, the reinforced concrete structure is most and very more useful for SSCJ mains 2019 because the weightage of the concrete in mains of SSCJ is greater. It is the ratio of marks is 25 to 60 or up to 70 marks. So we have to discuss in details, and first we have to discuss the steps which will be taken to solve the problem of design of slab. So let's we have to discuss, and the first step is checking it is one way slab or two way slab. Actually, the checking for one-way slab or two-way slab is the criteria of long span upon short span. If the ratio of long span upon short span is greater than 2, it is one-way slab. And if the ratio of long span upon short span is less than 2, it is two-way slab. And next step is assume a suitable bearing. Actually, the criteria for assuming a bearing is according to the Indian Standard Code, which we have to taken from 100 mm to 150 mm, which will be suitable to the given problems. And another step is thickness of slab. The criteria for calculation calculating the thickness of slab is equal to span upon 20 into modification factor plus effective cover. Effective cover, and the criteria for effective cover is diameter का half plus 15 mm, and the diameter is taken according to the steel of grade जो आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, उसके उस स्टील ग्रेड के अकॉर्डिंग हम डाया बार एज्यूम कर सकते हैं. फॉर FE 415 स्टील के लिए वी हैव टू टेक 8 mm डाया बार्स, एंड FE 250 यानी माइल्ड स्टील के लिए हम 10 mm बार यूज करेंगे. एंड modification factor, next step is modification factor. Modification factor is also depends upon percentage of steel, and initially we have to assume 0.3 to 0.4% steel in the starting problem, and according to the percentage of steel we have to take a suitable modification factor from the table. And for 0.3% steel, modification factor is 1.43. And next step is effective span of slab. And the criteria for effective span of slab, first is a distance between centers of bearing. एक बियरिंग के सेंटर से दूसरे बियरिंग की सेंटर की को डिस्टेंस को हम इफेक्टिव स्पेन कंसीडर करेंगे. एंड दूसरा क्राइटेरिया जो है वो आपका क्लियर स्पेन प्लस इफेक्टिव डेप्थ को ऐड कर देंगे तो हमें इफेक्टिव स्पेन आपकी मिल जाएगी. एंड नेक्स्ट स्टेप इज टोटल लोड. टोटल लोड इज calculated by the addition of dead load plus floor finish plus live load, and the criteria for dead load is equal to 25D, where 25 is the unit weight of concrete and D is the thickness of slab. And second is floor finish. Floor finish is equal to 24D. 24 is the unit weight of plain concrete and D dash is floor thickness. And next is live load. Live load is taken according to the standard Indian Standard Code. If it is not taken, it is not given in the problem. अगर आपको लाइव लोड नहीं दिया गया प्रॉब्लम में तो आप अज्यूम कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग इसका जो रेंज होता है वो 2000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में होता है. एंड finally we have to calculate factor load. Factor load is calculated by addition of dead load plus floor finish plus live load into multiplied by 1.5. and next step is determine factor moment. अब हमें फैक्टर लोड पता चल गया तो हम इसके हेल्प से क्या करेंगे, फैक्टर मोमेंट निकाल सकते हैं. फैक्टर मोमेंट आपका
ये स्लैब को हम एज ए सिंपली सपोर्टेड बीम काउंट करके चलेंगे तो जो फैक्टर्ड मोमेंट होगा वो आपका W L²/8 होता है। L आपका इफेक्टिव स्पैन होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज जो हमने फैक्टर्ड मोमेंट निकाला है उसको हम लिमिटिंग मोमेंट के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ से हमें इफेक्टिव डेप्थ हमें मिल जाएगी, यानी हम इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। और एमयू लिमिटिंग मोमेंट जो है आपका डिपेंड करता है एक स्टील ऑफ ग्रेड पर। फॉर Fe415 के लिए हम लिमिटिंग मोमेंट का जो फॉर्मूला लेंगे वो 0.138 FC के BD² लेंगे। एंड फॉर Fe250 के लिए एमयू लिमिटिंग का जो फॉर्मूला है वो आपका 0.149 FC के BD² होता है। जनरली FC के जो होता है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ या ग्रेड ऑफ कंक्रीट कह सकते हैं हम उसको, वो हम जनरली 20 लेके चलते हैं, M20 लेके चलते हैं, जिसमें FCK की जो वैल्यू होगी वो आपकी 20 Nm/m² होगी। इफेक्टिव डेप्थ इजिकल टू आपका होगा √MU अपॉन FCK 0.138 FCK BD²। FCK BD² से आप D वहाँ पे आपने वहाँ पे ले लिया तो आपका D इजिकल टू MU अपॉन 0.138 FCK इंटू B बचा। आप B यहाँ पे हम 1000 लेके चलते हैं, यानी विड्थ ऑफ जो स्लैब है वो आपका 1000 लेके चलते हैं, यानी 1000 mm यानी 1 मीटर हम कंसीडर करके चलते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें एक D की वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो D आपका आता है वो फ्लेक्सर स्ट्रेंथ कंसीडरेशन से हम निकालते हैं, जो आपका काफ़ी स्मॉल होता है। एक्चुअल रिक्वायरमेंट के अनुसार हम D एक प्रोवाइड करेंगे फॉर डिफ्लेक्शन कंसीडरेशन। एक्चुअल रिक्वायरमेंट जो होती है फ्रॉम डिफ्लेक्शन कंसीडरेशन से होती है। सो हम एक ग्रेटर वैल्यू हमेशा लेके इफेक्टिव डेप्थ की ग्रेटर वैल्यू लेके हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि जो कैलकुलेटेड वैल्यू आती है वो फ्लेक्चर स्ट्रेंथ कंसीडरेशन से हमने निकाला है। जो वैल्यू आपकी बहुत ही कम आएगी तो हम एक ग्रेटर वैल्यू ये कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है आपका एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील को निकालने के लिए पहले सबसे पहले आपको परसेंटेज ऑफ स्टील निकालना पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ स्टील का फॉर्मूला आपका IS कोड 2001 में दिया गया। इस 50 ब्रैकेट में 1 माइनस √1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK BD² अपॉन में FY अपॉन FCK। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको परसेंटेज ऑफ स्टील मिल जाएगा। देन एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए आपको परसेंटेज ऑफ स्टील अपॉन 1000 इंटू B इंटू D, यानी आपका एरिया ऑफ स्लैब यहाँ पर रख देंगे। जो है परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड शुड बी ग्रेटर देन, एंड जो हम परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्राइटेरिया से एबव होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। फर्स्ट है आपका 0.12%। अगर आपका जो स्टील ग्रेड है वो 415 है तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो परसेंटेज स्टील का वो 0.12% होता है। अगर आपका माइल्ड स्टील है Fe250 स्टील है तो जो परसेंटेज ऑफ स्टील आप प्रोवाइड करेंगे वो 0.15% होगी। एंड अब आपको स्पेसिंग ऑफ बार्स की ज़रूरत पड़ेगी, या कितनी स्पेसिंग पे आपको बार्स डालने हैं। तो स्पेसिंग ऑफ बार्स निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ 1 बार पता होना चाहिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन टोटल एरिया ऑफ स्टील से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पेसिंग ऑफ बार पता चल जाएगी। एंड मैक्सिमम स्पेसिंग जो बार्स की होगी वो जो क्राइटेरिया उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट है जो आपका 3D से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, एंड 300 mm से। इन दोनों से जो ग्रेटर नहीं 300 mm से आपकी ग्रेटर नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम स्पेसिंग जो बार्स की होगी वो 75 mm होगी। मिनिमम स्पेसिंग जो होगी बार्स की वो 75 mm होगी, और मैक्सिमम स्पेसिंग आप 300 mm ले सकते हैं। इससे ज़्यादा स्पेसिंग ऑफ बार्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है आपका चेक फॉर सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी की चेक करने के लिए हमें परसेंटेज ऑफ स्टील जो प्रोवाइड की गई है वो आपकी ग्रेटर नहीं होना चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टील अज्यूम। जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं परसेंटेज ऑफ स्टील जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी जो हमने इनिशियली अज्यूम की थी उससे उस परसेंटेज ऑफ स्टील से आपकी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट ग्रेटर देन द परसेंटेज ऑफ स्टील अज्यूम इनिशियली। इफ़ अगर ऐसा होता है तो इफ़ परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन फाइंड द एक्चुअल मॉडिफिकेशन फैक्टर अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ स्टील। अगर आप ऐसा होता है इफ परसेंटेज ऑफ स्टील
आपकी ग्रेटर प्रोवाइड हो जाती है तो आपको उस परसेंटेज ऑफ स्टील के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन फैक्टर प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन स्टील्स। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील क्या होती है? एक तो आपका मेन वार्स होते हैं और दूसरा आपका होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वार्स। मेन वार्स को बाइंड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वार प्रोवाइड कराए जाते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड एट राइट एंगल्स टू द मेन स्टील्स। जो आपके मेन वार होंगे, यानी मेन वार्स को लॉन्गिट्यूडनल वार्स बोलते हैं और जो आपके टाई वार्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन वार्स बोलते हैं। इसका जो क्राइटेरिया होता है, फर्स्ट जो आपका होता है वो स्टील ग्रेड पर डिपेंड करता है। 0.12% होगा अगर आप Fe415 यूज़ कर रहे हैं, 0.15% होगा अगर Fe250 यूज़ कर रहे हैं। एंड डाई ऑफ बार्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बार, for die of bars of distribution it also depends upon the percentage of steel। 8 mm बार यूज़ करेंगे अगर आपका Fe415 स्टील है, 6 mm बार यूज़ करेंगे अगर आपका माइल्ड स्टील है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। स्पेसिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स जो होता है नॉट ग्रेटर देन द 5D एंड सेकेंड इज 300 mm, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज चेक फॉर सीयर। चेक फॉर सीयर के केस में सीयर की प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए हमें टाउ बी इक्वल टू वी अपॉन बी डी निकालना पड़ेगा। फोर सेफ डिज़ाइन के लिए जो नॉर्मल सीयर होती है वो लेस देन होना चाहिए क्रिटिकल सीयर से, यानी टाउ सी से। टाउ बी ऑलवेज लेस देन टाउ सी फॉर सेफ डिज़ाइन के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू एल डी इक्वल टू 5 इंटू सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी होता है। वहाँ पे जो 5 होता है वो आपका डाई ऑफ बार्स होता है एंड सिग्मा एस टी जो होता है आपका 0.87 एफ आई के इक्वल होता है। एंड टाउ वी डी जो होता है आपका बॉन्ड स्ट्रेस होती है जो आपको दे रखा होगा, या फिर आप इसको अकॉर्डिंग टू इस आई कोड हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपका डिपेंड करेगा स्टील ग्रेड पर। एंड लास्ट स्टेप जो होता है आपका वो एंकरेज लेंथ है। एंकरेज लेंथ all bar must be taken into the support at least for a distance is equal to LD by 3, यानी डेवलपमेंट लेंथ के 1/3 पर सपोर्ट हमें लेना पड़ेगा। एंड थैंक यू गाइस।